Assalamu alaikum, second year. Welcome to the next lecture of the same chapter, operating system. I hope all of you are fine and taking lectures. Today, topic of our lecture, first topic is single user and multi-user operating system. Name is obvious, very clear difference between single user and multi-user operating system. What are these? Single user operating system allows only one person to operate the computer at a time, so it is single operating system, whereas multi operating system allows many users on different terminals or microcomputers to use the resources of single central server in a network is known as a multi-user operating system. Now, in our daily life, how can you determine that the operating system which you are using is either single user operating system or multi-user operating system? All of the operating system which you used on your personal computers, right? Which is used on your personal computers are single user operating system that cannot be shared by any other person. Like if you have Windows 10 on your laptop, that is only yours. You are not sharing with them anyone else. So it is single user operating system. Whereas if you are working on any client server environment and you are working in a network mode, एक network बना हुआ है जहाँ पे एक server computer को control कर रहा है, वहाँ पे वो जो सर्वर विंडोज हैं, सर्वर कंप्यूटर पे जो विंडोज इंस्टॉल हुई हुई हैं, दे हैव एबिलिटी टू कंट्रोल many of users excuse me many of users which are created on that. जो सर्वर विंडोज को जितने भी यूजर असाइन किए गए हैं उसके ऊपर क्रिएट किए गए हैं वो उन सब यूजर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वो जो सर्वर कंप्यूटर पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसको हम कहते हैं कि वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाई? बिकॉज दैट इज कंट्रोलिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर्स, राइट? सो this is the difference between single user and multi-user operating system. Next topic is operating system functions. There are 8 functions of operating system given in your book. What are these? Process management, memory management, file management, input-output management, secondary storage management, network management, protection system, and command interpreter. These are all primary functions which are done by your operating system. आपका जो भी operating system है, either you are using Macintosh, either you are using Windows, Android, any other kind of operating system, whichever you are using, all those operating systems have these main functions. ये main functions उन सब के होते हैं, ठीक है? First one is process management. First of all, what is a process? Process is a program in execution. अब इससे एक लाइन का क्या मतलब है कि a process is an program in execution. आप देखें, आपको अगर कोई आपको काम कहा जाता है कि आपने ये असाइनमेंट बनानी है या ये लेक्चर सुनना है, अब मैंने आपको एक इनपुट दिया, आपको एक ऑर्डर दिया है, कमांड दिया आपको कि आपने ये काम करना है। जब आप उस काम को कर रहे हैं तो दैट इज प्रोसेस। जब वो काम हो के मेरे पास वापस आता है तो वो आउटपुट है, ठीक है। मैंने आपको असाइनमेंट दी, दैट इज एन ऑर्डर और दैट इज एन इनपुट। आपने उस असाइनमेंट के ऊपर काम किया, दैट इज प्रोसेसिंग। और जब वो आपने मुझे वापस सबमिट करवाई तो वो आपकी आउटपुट है। So a process is an program in execution. अब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। प्रोसेस जब होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी एग्जांपल भी दी गई है कि अगर 3 प्रोसेसेस
इकट्ठे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास एट अ टाइम आपने ब्राउजिंग भी स्टार्ट कर दी है, एक तरफ आपने वर्ड पैड पे राइटिंग भी स्टार्ट कर दी है, एक तरफ आपका आपने सॉन्ग्स भी प्ले कर दिए हैं। अब होता क्या है कि आपने वो तीनों प्रोसेसेस उसने अब साथ साथ चलाने हैं। पीछे बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है वो आपको नहीं नजर आ रहा। आपको ये लग रहा है कि तीनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, तीनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। अब म्यूजिक तो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। उसने अपना टाइम इन तीनों के ऊपर डिवाइड करना है, तीनों के ऊपर डिवाइड करना है। जो आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, एक म्यूजिक, और दूसरा वो विंडो जो आपकी ओपन है, आइदर वो टाइपिंग की विंडो है या ब्राउजिंग की विंडो है, वो उन दोनों को ज्यादा टाइम दे रहा है। और जो तीसरा आपने मिनिमाइज किया हुआ है उसको टाइम कम मिल रहा है क्योंकि वो अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन आप जब उस विंडो को भी खोलेंगे तब भी आपको ऐसे लगेगा कि ये काम तो हो रहा था साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों को मैनेज करके चलाता है, ठीक है, इन तीनों को मैनेज करके चलाता है। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं लगेगा कि कोई कहीं टाइम की कमी बेशी हुई है, आपको ऐसा नहीं लगेगा। आप अगर अ, अपनी जो टास्क बार है, जो सॉरी जो आप ऑपरेशन इसको ओपन करें, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करें और उसके बाद आप इसको चेक करें तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन एग्जीक्यूशन होते हैं। अब a process in execution needs various resources like the input output devices, memory, etc. अब होता क्या है कि जो जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस की और मेमोरी की ज़रूरत होती है। जाहिर है कि वो रैम पे चल रहे होते हैं। रैम इज़ अ वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। कोई भी प्रोसेस आपकी रैम से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आप अगर अपना टास्क मैनेजर खोल के देखें, ये देखें टास्क मैनेजर खोला है मैंने। इसमें आप देखें ये प्रोसेसेस की हेडिंग है। प्रोसेसेस की हेडिंग में कितने प्रोसेसेस बैक एंड पे चल रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो आपने खुद नहीं चलाए हुए, आपने नहीं चलाए हुए, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है इसलिए वो साथ साथ आपके चल रहे हैं, ठीक है। और ये किस हद तक आपकी सीपीयू कितना ले रहे हैं, 6%, मेमोरी 65%, डिस्क 4%, नेटवर्क 0%। ये जितना आपका काम हो रहा है वो सारा जितने भी प्रोसेसेस आपके रन हो रहे हैं वो कितनी यूजेज ले रहे हैं सीपीयू की, वो सब इसके ऊपर आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस मैनेजमेंट आपका सीपीयू करता है, मींस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद इसके अंदर आपको इसकी परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी कि सीपीयू कितने यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी है, डिस्क कितनी है, वाईफाई, ठीक है। ऐप हिस्ट्री भी आएगी जो अभी नहीं शो हो रही यहाँ पे। स्टार्ट आउट यूज़र्स, एक ही यूज़र है इसका क्योंकि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर डिटेल्स में कितना कौन कौन सा रन कर रहा है, कौन डिसेबल्ड है, कौन नॉट अलाउड है, फिर सर्विसेज, ये सारा काम आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि आपके सीपीयू के ऊपर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस वक्त कितने प्रोसेसेस रन कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपकी जितने भी कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी रैम है, लेकिन ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है ये आपकी रैम पे होती है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि प्राइमरी का मतलब है इंतहाई ज़रूरी। अब आपका कोई भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकता जब तक कि वो रैम के ऊपर ना जाए। सो रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। अब प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी फॉर एग्जांपल आपकी रैम है 4 GB की, 2 GB आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले ली, बाकी 2 GB पे आपने बाकी सारा काम करना है अपना। अपने फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो,
फिर आपने कोई ब्राउजिंग के लिए ओपन कर लिया एप्लीकेशन, फिर आपने कोई म्यूजिक प्ले कर दिया, आपने कोई और काम शुरू कर दिया, उन सब कामों को उस 2 GB की जो रैम आपकी रिमेनिंग है उसके ऊपर एडजस्ट करना कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, उन सब का ये कौन करता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, operating system automatically loads user programs in available memory space and executes them. जो available memory space है उसके ऊपर वो उसको लोड करता है और उसको, आपको ये फील नहीं, हाँ अगर आपकी रैम कम है और आप ज़्यादा प्रोग्राम्स उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा और आप जो है वो स्टॉप हो जाएगा काम करना, मतलब रुक जाएगा काम करते करते, आपको उस पे आप जिस तरह काम करना चाहते हैं वो हैंग हो जाएगा काम करते हुए। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतनी स्पेस ही नहीं है जितने प्रोग्राम्स आप उसके ऊपर ओपन करना चाह रहे हैं। राइट, सो दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट विच इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। आप जब फाइल मैनेजमेंट करते हैं, ये एक फोल्डर है, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो साइट पे सारी फाइल्स मैनेजमेंट हुई हुई है, सारे फाइल्स जो डेस्कटॉप पे हैं वो डेस्कटॉप पे हैं, जो डाउनलोड्स में हैं वो सब डाउनलोड्स में पड़े हुए हैं, जो आपकी किसी ड्राइव में पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये सी ड्राइव में जो फोल्डर्स हैं, जो डी ड्राइव में, अब आप देखें जो सी में सेव है वो सी में ही है, जो डी में सेव है वो डी में ही है, जो ई में है वो ई में ही है, ठीक है, जो एफ में है वो एफ में ही है। ये सब कौन मैनेज करता है? इन सारे फाइल फोल्डर्स की मैनेजमेंट, इनको कहाँ सेव करना है, इन विच ड्राइव, यूएसबी, हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, and they're copying, creating new folder and everything about file management, that is also done by operating system, and it's a very big task also. If you save your file in its D drive and another day you will find in E drive, then what's the use of computer? वो तो आप फाइल में भी पेपर रखते थे तो वो कभी एक फाइल से मिलते थे तो कभी दूसरे से मिलते थे, तो हमें फायदा तो कुछ ना हुआ। Our documents and our everything is secure in computer. Why? Because operating system is working efficiently. Next one is input output management. All the operation of input output devices, all those operations which are done by input output devices which are attached to computer, all are managed by operating system. What are the input output devices? Keyboard, mouse, monitor, pointer, whatever. If I am giving input through keyboard or mouse, monitor is showing me output. If I am giving print to the printer through mouse or display or anything, that is going to printer. अब जिस चीज को आपने इनपुट दी है वो इनपुट लेके उसी चीज को आउटपुट भेज रहा है जहां से आपको आउटपुट चाहिए. If you want output from speaker, if you want output from printer, right, all of that is managed very properly. So which who is managing all these? All these are done by operating system. So these are the first 4 functions of operating system, right? In the next lecture we will discuss remaining 4 functions of operating system. So till then I recommend you to read them from book and try to understand the concept of all these functions, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटा लगा के याद करेंगे तो that will be very difficult for you. Thank you for this lecture.